Hello, good morning students. In this class we will discuss some numerical problems based on Norton's theorem. Norton's theorem. Using Norton's theorem, we have to solve this network problem. And we have to draw equivalent Norton circuit across XY terminals. Question is draw Norton's equivalent circuit. Norton's equivalent circuit. Norton's equivalent circuit across XY terminals. Across XY terminals. Draw Norton's equivalent circuit across XY terminals. Across XY terminals. We have to draw Norton's equivalent circuit across XY terminals. So statement of Norton's theorem is any linear active network having independent or dependent sources can be replaced by equivalent circuit. Can be replaced by equivalent circuit having a current source in parallel with a resistance. This is the Norton's equivalent circuit XY. IS या IS जो है ये शॉर्ट सर्किट करंट है across XY terminals and R is open circuit resistance across XY terminals. तो दिए गए सर्किट के XY टर्मिनल्स के अक्रॉस नॉर्टन सर्किट ड्रा करना है. इसके लिए हम सबसे पहले शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करेंगे. शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम XY टर्मिनल जो है इनको शॉर्ट कर देंगे. ठीक है. शॉर्ट करने के बाद में इसमें जो करंट का फ्लो होगा दैट इज IS. अब यहाँ हमें शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है दैट इज IS. जब हम टर्मिनल्स को शॉर्ट करते हैं तो 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसका सर्किट में कोई वैल्यू नहीं है. यहाँ पे हम इक्विवेलेंट सर्किट इसका रिजल्टेंट जो सर्किट ड्रा करते हैं वो हमें मिलेगा 5 ओम 2 वोल्ट 5 एम्पियर and this is IS. So now current due to this is 2/5 that is 0.4 ampere. This is outgoing and this is incoming. So IS is equal to 0.4 minus 5 ampere. So it will be minus 4.6 ampere. So value of short circuit current will be minus 4.6 ampere. Minus 4.6 ampere.
Similarly, for R internal or Norton's equivalent resistance, we draw a circuit as voltage source is short circuited and current source is open circuited, and a ground is of 2 ohm, and these are the XY terminals. So R internal is equal to 5 into 2 divided by 5 plus 2, 10 divided by 7 ohm. So this is R internal resistance, Norton's equivalent resistance. Now we draw equivalent circuit or Norton's equivalent circuit, which is a current source. Its value is minus 4.6 ampere and a resistance of 10 by 7 ohm. 10 by 7 ohm. This is the Norton's equivalent circuit. Norton's equivalent circuit. This is the Norton's equivalent circuit. Similarly, now we take next question based on Norton's theorem. Second question is question number 2, that is 12 volt, that is 12 volt 5 ohm, or 12 volt 6 ohm, and this is 3 I naught dependent source, 3 I naught. And next is a resistance of 3 ohm, and this current is I naught, and load resistance is 1 ohm. This is load resistance 1 ohm. Question is find the value of current. Find the value of current in 1 ohm resistance. Find the value of current in 1 ohm resistance using Norton's theorem. तो सबसे पहले हम शॉर्ट सर्किट करंट ड्रा करेंगे. 6 ohm I naught three I naught 3 ohm एंड शॉर्ट करते हैं. जब हम लोड के टर्मिनल्स को ओपन करके शॉर्ट करते हैं यहाँ पे, तो 3 ohm का यहाँ सर्किट में कोई भी लोड नहीं रहता है, इसको अपन हटा सकते हैं यहाँ. तो इस प्रकार से हमारे पास शॉर्ट सर्किट करंट के लिए इक्विवेलेंट सर्किट दिया है. आइए सीधा शॉर्ट सर्किट. अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 3 एम्पीयर 3 I नॉट यहाँ से आ रहा है, I नॉट यहाँ से. KCL अप्लाई करेंगे तो ये करंट हमारे पास हो जाएगी 4 I नॉट. Current IS is equal to 4 I naught. IS is equal to 4 I naught. तो I naught is equal to I naught क्या होगा 12 by 6, क्योंकि ये तो न्यूट्रल टर्मिनल है, ग्राउंडेड है ये पॉइंट. तो यहाँ से I naught की वैल्यू हमारे पास आएगी 12 by 6, दैट इज
2 एम्पियर। तो IS की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4 गुना 8 एम्पियर। 8 एम्पियर करंट हमारे को शॉर्ट सर्किट करंट मिलेगी। नेक्स्ट कैलकुलेशन हमें करना है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। सेकंड कैलकुलेशन फॉर आर इंटरनल। नेक्स्ट कैलकुलेशन फॉर आर इंटरनल और इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हमें कैलकुलेशन करना है और हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, डिपेंडेंट को नहीं। डिपेंडेंट के सोर्स के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये हमारे पास 3i0, ये i0। ओके, नाउ दिस इज 3 ohm and these are the open circuit terminals। और हमें ओपन सर्किट टर्मिनल्स के अक्रॉस फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस की वैल्यू। रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम नोडल एनालिसिस यूज कर सकते हैं। नोडल एनालिसिस का यूज सहायता से यूजिंग नोडल एनालिसिस हम वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स नेटवर्क। इस प्रकार से हम यहाँ पे वोल्टेज भी कंसीडर कर लेते हैं और नोडल एनालिसिस हम अप्लाई करेंगे। तो नोडल एनालिसिस जैसे हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ACL से दैट इज कितनी आएगी हमारे पास I0 इनकमिंग है, या हम इसको लिख सकते हैं V/6 और इनकमिंग करंट है माइनस का 3i0 और यहाँ पे भी करंट जो है V/3 होगा इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। क्योंकि ये दोनों करंट है इसको अपन I0 लिख सकते हैं, माइनस I0 V/6 को माइनस I0 लिख सकते हैं और ये 3i0 बराबर V/3। तो V/3 इक्वल टू 4i0, V/3 इक्वल टू 4i0। और जब हम 4i0 का भाग देंगे तो हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू कितनी मिलेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज बताइए। यदि हमें इंडिपेंडेंट सोर्स है तो हम सोर्स को अकेले रहेंगे। यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करेंगे नोडल इक्वेशन, जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स को हटाएंगे, डिवाइड रेशियो ले लें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4i0 माइनस V/3 इक्वल टू 0। और I0 की वैल्यू अपन कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, 12 माइनस VOC डिवाइडेड बाय 6। सो यहाँ से आ जाएगा 12 माइनस VOC डिवाइडेड बाय 6 माइनस V/3। यहाँ से हमारे पास V की वैल्यू हो जाएगी 8 वोल्ट। सो वैल्यू ऑफ V बिकम्स 8 और ISC हमारे पास 8 है। ISC हमने पहले फाइंड आउट कर लिया दैट इज 8 एम्पियर। तो I इंटरनल क्या हो जाएगा, R इंटरनल 8 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 1 ओम।
अब हम नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करेंगे। तो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में करंट सोर्स की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? द वैल्यू ऑफ करंट सोर्स विल बी कितना एम्पियर? 8 एम्पियर। आर इंटरनल कितना आया है? 1 ओम। लोड का रेजिस्टेंस 1 ओम। सो आई एल लोड के अंदर करंट जो हो जाएगा वो कितना होगा? 8 × 1/2 दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर। इस तरीके से हमारे पास लोड लाइन के अंदर जो करंट की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 4 एम्पियर। नोडल एनालिसिस का उपयोग करते हुए नोडल थ्योरम का उपयोग करते हुए सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व द एनी सर्किट यूजिंग नोडल थ्योरम। अगला क्वेश्चन जो है वेरी सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यहाँ पे 3 वोल्ट 10 ओम और यहाँ पे रेजिस्टेंस है 5 ओम और यहाँ पे हमारे पास करंट सोर्स भी रखा है इसमें जिसकी वैल्यू क्या है? 1 एम्पियर। और ये कह रहा है नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट टू द राइट ऑफ टीवी टर्मिनल हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करना है। एबी टर्मिनल ये है 1 एम्पियर। अब हमें नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करना है तो सबसे पहले हमें आईएससी की आईएससी के लिए हम क्या करेंगे? टर्मिनल्स को हटाएंगे और टर्मिनल्स को हटा करके क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे। तो यहाँ से 1 एम्पियर और ये हो जाएगा 5 ओम। तो आईएससी की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर क्योंकि टोटल करंट कितनी जाएगी? शॉर्ट सर्किट पाथ में। रेजिस्टेंस की आर इंटरनल के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ से ब्रांच को हटाने के बाद में हमारे पास करंट सोर्स को ऊपर रखते हैं 5 ओम। तो हमारे पास यहाँ पे आर इंटरनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 ओम। तो नॉर्टन सर्किट क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 एम्पियर और 5 ओम। 1 एम्पियर एंड 5 ओम। ये हमारा नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हो गया एबी टर्मिनल के एक्रॉस। इस तरीके से हम सर्किट को हल करते हैं। So thank you for today class, dear students.